Bibles and turn with me to the Gospel of John chapter 14. और यूहन्ना अपने बाइबल लीजिए यूहन्ना इसका 14वें अध्याय में मेरे साथ अब आए Verses 16, 17 and 26. 16, 17 और 26वां वचन John 14, 16, 17 and 26. और यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 16, 17 वचन और 26वां वचन I will read it to you in English. और मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा John 14, 16, 17 and 26. और यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 16, 17 और 26वां वचन Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड If everyone's got your Bible, can I hear a hallelujah? Hallelujah. Fantastic. John 14. I will ask the Father, and He will give you another comforter, that He may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or knows Him or recognizes Him. But you know and recognize Him, for He lives with you and will be in you. But the Comforter, whom the Father will send in my name, in my place, will teach you all things, and He will cause you to recall everything I have told you. It speaks about the Holy Spirit in the portion that we just read. जो भाग इसी समय हमने पढ़ा पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता We है are speaking about our inheritance. और हमारे मिरास के बारे में हम बात कर रहे हैं Because we are in Christ, क्योंकि हम मसीह में हैं we are Abraham's descendants. तो हम अब्राहम के वंशज हैं Everything that God has promised Abraham हर एक बात जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था is now yours and mine. अब वो वायदा आपका और मेरा है I met a pastor 2 weeks ago, और 2 सप्ताह के पहले पासवान से मैं मिला and he said, like, what are you doing with Abraham for 35 weeks now? और उसने कहा कि यार अब्राहम के साथ आप 35 ऐसे सप्ताह हो गए अब्राहम के विषय में आप क्या बातें कर I रहे said, हो I'm going to deal with Abraham all my life. और मैंने कहा कि अब्राहम के साथ पूरे जीवन भर में उसी बात के बारे में देखता Because रहूंगा I want everything that God promised Abraham. क्योंकि हर एक बात जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था उस सारी बातें मुझे So चाहिए that there is a lot to study and to understand and to put into practice in our life from what God promised Abraham, which is now your and my promise. और अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा दिया था उसमें से बहुत सारी बातें जानना और समझना और इस समय आपके और मेरे जीवन में उस बात को प्राप्त करना ये बहुत ही अहम जरूरी And बात we है started meditating upon the role of the Father, the role of the Son, and the role of the Spirit in helping us receive our inheritance. और हमारी मिरास को प्राप्त करने के मददगार के तौर पर हमने पिता का कार्य पुत्र का कार्य और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है And we saw how the Father is the source of all blessing in our life. और हमने देखा कि किस प्रकार से पिता जो हमारे जीवन में सारे आशीर्वाद का वही उगम है Come on, say the Father is the source of all blessings in my life. आइए मेरे जीवन हम कहें कि मेरे जीवन में सारे आशीर्वादों का उगम Now in Hindi, yes, now say और हम कहें कि मेरे जीवन में सारे one by one. मेरे जीवन में सारे आशीर्वादों का उगम सारे आशीर्वादों का उगम परमेश्वर पिता है परमेश्वर पिता है. This is an effort at least now to try teaching the Tamilians little Hindi. You know, otherwise they live for 25, 30 years in Mumbai, and you know it's very difficult to get by in Hindi with them. So you're going to do a lot of repetitions like this. Praise God. So the Father is the source of all blessings. और पिता सारे आशीर्वादों का उगम है And Jesus Christ, the Son, is the realization of all blessings. और यीशु मसीह जो पुत्र है वो उस आशीर्वाद का वास्तविकता है Hallelujah. Hallelujah. So whatever the Father spoke और इसलिए जो कुछ पिता परमेश्वर कहता है came into existence in Jesus. और वो यीशु में अस्तित्व में वो आया And then we are now learning about the role of the Holy Spirit. और अब हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हम सीख रहे Last हैं week I spoke to you about how the Holy Spirit is a guarantee. और पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा वो एक हामी है गारंटी है मेरा वो एक बयाना है Do you remember that sermon? क्या वो प्रचार आपको याद है Half of the church was not there, so I see not shaking her head. I know और that. आधी कलीसिया उस समय नहीं थी इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने साथ नहीं You मिला can go to YouTube and you can check that message out. अब आप YouTube पे जाकर उस संदेश को आप देख सकते हैं Praise God for Brother Victor who does it relentlessly and every week. और भाई विक्टर के लिए धन्यवाद हो कि हर एक सप्ताह बगैर चूके वो बराबर इस रिकॉर्ड को करता है Hallelujah. हालेलुया And God honors someone who honors his work. और परमेश्वर उसे आदर करता है जो उसके काम को आदर करता है Hallelujah. Hallelujah. And I'm telling you, in the entire of last year, the way he and his family have been blessed, no one else has been blessed. और मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से वे और उनका परिवार पिछले साल आशीर्वादित हुआ है दूसरा कोई भी ऐसा आशीर्वाद नहीं We हुआ are speaking about the Holy Spirit as a guarantee to our inheritance. और हम बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे आशीर्वाद के लिए एक बयाना है इस बात को हम बता रहे Every हैं promise that God has made to you and me हर एक वायदा जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है is not a promise made in emptiness. और वो ऐसे
खालीपन में वायदा किया, ऐसा When नहीं। God gives you a word, जब परमेश्वर आपको वचन देता है, you can actually stand there and ask God and say, Lord, what is the guarantee that this promise will be fulfilled in my तो life? वास्तविकता से आप खड़े होकर परमेश्वर को पूछ सकते हो कि परमेश्वर कौन सी गारंटी या बयाना क्या है कि ये वादा मेरे जीवन में पूरा The होगा। guarantee is His own Spirit that He gives you and me. और वो बयाना जो है उसकी खुद का आत्मा है जो उसने आप पर मुझको दिया I है। spoke about the Spirit of God. और मैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में आपको बता The रहा था। Spirit of God is the very life of God. परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर ही का जीवन है। We went to a funeral yesterday, और कल के दिन हम जो है फ्यूनरल में गए थे। and you know when the coffin was coming in, और हम कब्रिस्तान में गए थे और जहाँ वहाँ पे शव पेटी जब आई, this man in the front, he said, "Let's all rise. The body is coming." और वो व्यक्ति जो सामने था उसने कहा कि देखो शव आ रहा है, सारे लोग खड़े हो The जाओ। man had a name. और उस व्यक्ति का तो नाम था, At the moment the Spirit left him, लेकिन जिस क्षण वो आत्मा उससे निकल गई, even his relatives started calling him body. और उसके रिश्तेदार भी उसे शव पुकारने लगे। The Spirit of God, the very life of God, और परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का जीवन is what God has kept in you and me as a guarantee that every promise He has promised in you, He will fulfill it. और परमेश्वर ने आपके अंदर और मेरे अंदर वो आत्मा जो बयाने के तौर पर दिया है, इस बात की हामी है कि जो परमेश्वर ने आप पर मुझको जो वायदा उसने किया वो पूरा होगा। Hallelujah. 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 Guaranteed by His Spirit. और आत्मा के द्वारा ये बयान So I just want to continue this teaching on the role of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का कार्य इस विषय के बारे में मैं लगातार आपको सिखाता Because the रहूंगा। Holy Spirit is God with us क्योंकि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर जो हमारे साथ है and God in us. और हमारे अंदर रहने वाला प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit today continues the ministry of Jesus. आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सेवकाई को लगातार वो आगे कर So रहा I है। just want to meditate a few things quickly today. और आज कुछ बातों को जल्द में अध्ययन करना चाहूंगा। Verse 14 of John chapter 16. और Verse 16 of John chapter 14. और यूहन्ना 14वें अध्याय का 16वां वचन। I will ask the Father, और मैं पिता से विनती करूंगा and He will give you another comforter. और वह तुम्हें और एक सहायक देगा। Now the word comforter, अब सहायक ये जो शब्द है, when you read it in the Amplified Bible, एम्प्लीफाइड बाइबल में जब आप इसे पढ़ोगे, it has a lot of similar meanings. और बहुत सारे समानांतर इसके अर्थ है। A few of them are these. और कुछ उसमें से कुछ ऐसे हैं। Comforter also means counselor. और सहायक का मतलब सलाहकार, It also means helper. उसका मतलब है It मददगार, also means intercessor. और उसका मतलब है पिछवाई करने It वाला, also means advocate. और एक उसका मतलब है वकालत करने It वाला, also means strengthener. और उसका और एक मतलब है बल देने It वाला, also means your standby. और एक उसका मतलब है कि आपके साथ खड़ा रहने Now वाला। the word comforter, अब सहायक ये जो शब्द है, the Greek word, it's called parakletos. ग्रीक शब्द में इसे पैराक्लिटोस कहते And हैं। the word parakletos, it refers to calling someone to your side. और पैराक्लिटोस ये जो शब्द है इसका मतलब है किसी को अपने बगल में बुला लेना। When you need help, you call someone. और आपको जब मदद की जरूरत पड़ती तो आप किसी को बुलाते हो। I'm trying to push this. और मैं इसको धक्का देने का I'm प्रयास not कर रहा able हूं। to do it. और मैं ऐसा नहीं कर So पा I रहा। said, Rajesh, why don't you come? और इसलिए मैं कहता हूँ कि राजेश क्यों नहीं तुम आ जाते। I'm calling someone to help me achieve something. और किसी बात को प्राप्त करने के लिए मैं किसी की मदद के लिए किसी को बुला रहा When हूँ। Jesus says, I will go to the Father, जब यीशु कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा and I will ask the Father to send you someone. और मैं पिता से कहूंगा कि आपके लिए तुम्हारे लिए किसी को भेजे। He says, I will ask the Father to send you the Holy Spirit as a parakletos. और वो कहता कि मैं पिता से मांगूंगा कि वो तुम्हारे लिए पैराक्लिटोस भेजे। Someone who will stand with you. ऐसा कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, Someone who will help you. ऐसा कोई जो तुम्हारी मदद करे, Someone who will help you accomplish what you have purposed in your life. और ऐसा कुछ कोई जो तुम्हारे लिए जो तुम जीवन में जिस बात का उद्देश्य रखते हो उस बात को पूरा करने में मददगार हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा So है? every time you get what I say, I need to hear an amen from इसलिए you. जब कभी आपको जब मैं बता रहा हूँ समझ में आए तो मैं आमीन सुनना चाहूंगा I will आपसे। then understand that you've got और it. उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। So the Holy Spirit is someone called to our side. और इसलिए पवित्र आत्मा ऐसा है जो हमारे निकट हमारे लिए बुलाया गया है। So God the Father, the source of the blessing. और पिता परमेश्वर जो आशीर्वाद का उगम है। Jesus Christ, the realization of the blessing. और यीशु मसीह उस आशीर्वाद का अस्तित्व The है। Holy Spirit, the guarantor of the blessing. और पवित्र आत्मा जो उस आशीर्वाद का बयाना And है। today we are reading that the Holy Spirit is one who is called to our side. और आज हम पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा है जो हमारे निकट हमारे बगल में रहने के लिए बुलाया गया। Why was it important for Jesus to do this arrangement for you
you and me. और ये आपके लिए और मेरे लिए यीशु को ऐसा अरेंजमेंट ऐसा कार्य करने की क्या जरूरत The पड़ी? work of Jesus on the cross was perfect. क्रूस पर तो यीशु का कार्य पूर्णता से सिद्ध हो It चुका was था। complete. वो पूर्णता से काम हो चुका There's था। nothing that needs to be done after what Jesus has done on the और cross. यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके बाद कुछ भी करने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं Are थी। you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा It है was a perfect sacrifice. वो पूर्ण सिद्धता का वो बलिदान था। Jesus said it is finished. यीशु ने कहा समाप्त हुआ। It was like a full stop in the plan of God. यानी परमेश्वर की योजना वो अंतिम विराम का बिंदु था It's all done and complete. और पूर्णता से पूरा कर दिया गया था The project complete. और वो काम पूरा कर दिया गया था। But why is Jesus saying this? लेकिन यीशु ये बात क्यों कह रहा I'm है? reading that part again. और उस बात में हम वापस पढ़ेंगे And I will go to the Father. और मैं पिता के पास जाऊंगा I will ask the Father. और मैं पिता से विनती करूंगा And He will give you another comforter. और वो तुम्हें और एक सहायक देगा। Why did Jesus feel it necessary that you and I need to have someone after Jesus is gone? क्यों यीशु को ऐसा लगा कि आपको और मुझको किसी और की जरूरत पड़ेगी जब यीशु जा चुका होगा? That is again in this inheritance what we are studying. दोबारा इस मिरास के विषय में है जो हम पढ़ रहे हैं। God the Father is the source. पिता परमेश्वर वो उगम है। Jesus came as a realization. यीशु उसके अस्तित्व होकर वो आशीर्वाद का And अस्तित्व now हो रहा है। Jesus says, अब यीशु ऐसा कह रहा it's है not enough if you just have me. अगर मैं केवल आपके साथ रहूं तो ये काफी ना होगा You need to also have a comforter. और तुम्हें एक तसल्ली देने वाला भी चाहिए You need to have a counselor. और एक सलाहकार भी तुम्हें चाहिए I want to hold on to that word counselor और today. सलाहकार इस शब्द को आप धरे रहे ऐसा मैं चाहता Now हूं you know when you win a lottery और जब आप लॉटरी आपको प्राप्त होता and say है so Rajesh gets a lottery today और आप बोलते हैं अरे राजेश को आज लॉटरी लगी है and he gets about say 10 crores और समझो 10 करोड़ रुपए लगे and he goes home a very happy man. और बहुत ही खुश और खुशहाली पुरुष होकर वो घर पर जाता Now है even before you and I could call him and congratulate him, और आप और मैं उसे कॉल कर जो है उसे बधाई देने से भी पहले there is another group of people that will be calling Rajesh. वो दूसरे लोग होंगे जो राजेश को बुलाएंगे They are called financial counselors or financial advisors. और वे जो है आर्थिक सलाहकार या आर्थिक निर्देश देने वाले ऐसा They बोलते will हैं say, "Hello Rajesh ji. और बोलेंगे हेलो राजेश जी We just heard that you got a lot of money. हमें सुना है कि आपको बहुत सारे पैसे मिले So हैं we want to help you manage that money. और इसलिए उस पैसे को कैसे संभालें इस बात को हम आपको बताना We चाहेंगे want to help you pay the taxes. और हम आपको मदद करेंगे कि आप टैक्स चुकाएं We want to help you invest the money. और हम आपको मदद करेंगे कि आप पैसे लागत लगाएं We want to ensure that you get the best returns. और हम इस बात की हामी भरेंगे उसका जो है उसका बदला आपको ज्यादा मिले We want to make sure that your money is protected. और हम आपकी इस बात की हामी भरना चाहते हैं कि आपके पैसा बहुत ही सुरक्षित So रहे these financial advisors and financial counselors now come around him like honeybees. और अब ये जो अर्थव्यवस्था के और जो सलाहकार होते हैं और निर्देश देने वाले मानो मधुमक्खी के समान इसके इर्द गिर्द He's रहेंगे getting continuous calls. और लगातार कॉल्स जो आते This रहेंगे bank, that bank, और ये बैंक से वो बैंक that से company, this company. वो कंपनी ये कंपनी You know, people are attracted to him because they know that he has some wealth. और लोग जो है इस प्रकार से आकर्षित इसकी ओर होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास धन है Jesus says that the counselor will come to you. और यीशु कहता कि सलाहकार तुम्हारे पास आएगा You know, when you don't have any money, देखिए आप जब आपके पास कुछ पैसा ही नहीं रहता no counselor will call you. तो कोई भी सलाहकार आपको कॉल नहीं करेगा But when you have an inheritance, लेकिन जब आपके पास बड़ी मिरास है the counselor will come to तो you. सलाहकार आपके पास आएगा Hallelujah. Hallelujah. You know why Jesus said you need a counselor? अब जानते हो यीशु ने क्यों कहा कि तुम्हें एक सलाहकार की Because जरूरत he है knew that you have an inheritance. क्योंकि वो जानता है कि आपके पास मिरास आपको प्राप्त है Some people are still lost. कुछ लोग अभी भी खोए हुए हैं Hallelujah. I see some familiar looks on the faces of people. और कुछ जो ऐसे जाने हुए चेहरे को मैं लोगों के चेहरे पर देख You know, रहा when I हूँ was in college, I was called the safety driver. देखिए जब मैं कॉलेज में था मैं सेफ्टी ड्राइवर ऐसा मुझे बुलाया What's the गया meaning of safety driver? सेफ्टी ड्राइवर का मतलब आपको पता है Whenever we had parties, और जब कभी पार्टी हुआ करती whenever थी all my friends were drunk, जब कभी सारे मेरे मित्र जो है शराब पीते थे it was my responsibility to put them in the car. Take them safely back to the hostel. तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें कार में डाल दूं और उन्हें बहुत ही सुरक्षित हॉस्टल में ले जाऊं Into their own rooms, उनके खुद के कमरे में मैं उन्हें ले जाऊं onto their own bed. उनके खुद के कटिये पर मैं उन्हें ले जाकर रखूं That's a night story that's done in God. और ये बहुत ही अलग ऐसी कहानी जो वहां पर की गई Early morning, you see, not early morning, say 10 o'clock, 11 o'clock next day. और दूसरे दिन 10 या 11 You बजे should look at the faces of those people. और उनके चेहरे को आप देखना चाहिए The
They will not know what happened last night. तो मानो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कल की रात क्या हुआ था They will not know how they came there. और वो कैसे वहां पर पहुंचे उनको बिल्कुल पता नहीं So I'm very familiar with that look. और उस चेहरे से मैं बहुत ही जाना I पहचान see that kind of looks here this morning. उस प्रकार के चेहरे इस सुबह के समय मुझे दिखाई दे I don't know why I'm here. वो कहता है मैं यहाँ पर क्यों मुझे नहीं I मालूम don't know what he's talking और about. किस बात के बारे में बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है Hallelujah. Hallelujah. So let's change that look a little. इसलिए आइए वो ऐसा देखना जरा आप बदल दो Hallelujah. Hallelujah. I said, मैंने कहा when there is an inheritance, जब एक मिरास होती है a counselor is required. तो सलाहकार की जरूरत पड़ती है The disciples did not know what Jesus is talking about. और चेलों को पता नहीं चल रहा था यीशु किस विषय बात कर रहा The है disciples did not have the revelation that you and I have today. आज जो प्रकटीकरण आप पर मुझको है वो प्रकटीकरण वो चेलों को उन दिनों में नहीं था But Jesus still looks at them. लेकिन यीशु ने फिर भी उनकी ओर देखा And he says, see, I'm going to be gone. और कहा कि देखो मैं तो जब जाने वाला हूँ Immediately everyone has a long face. और अचानक सारे लोगों का चेहरा उदास हो गया Peter says, Lord, where are you going? और पतरस ने कहा हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो John says, wherever you go, I will come. और पौलो उसने कहा कि यूहन्ना ने कहा जहाँ के तू जाएगा मैं आऊंगा Everyone is trying to prove their faithfulness. सारे लोग अपनी विश्वास योग्यता को साबित करने का But प्रयास कर Jesus रहे says, हैं I'm going. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तो जा रहा I हूँ will go to the Father. मैं पिता के पास जाऊंगा And I'm going to ask him to send you the counselor. और मैं उससे मांगूंगा कि तुम्हारे लिए एक सलाहकार भेजे Immediately the disciples are talking. और तुरंत चेले आपस में बात करने Now, what लगे is the use of a counselor? अब इस सलाहकार की क्या उपयोग है क्या Come on, Peter, how much money do you अरे have? पतरस तुम्हारे पास कितने पैसे One हैं of the richest is Judas. अरे नहीं धर्मांत तो यहूदा He's got all इसको the money there. और सारा पैसा तो उसी के पास है I don't need a counselor. मुझे तो सलाहकार की I जरूरत don't नहीं need है an advisor. मुझे तो एक उपदेश देने की जरूरत नहीं What है is he going to advise me about? और ये किस बात के बारे में मुझे सलाह देगा But Jesus knew something that those disciples did not know. लेकिन यीशु ऐसी कुछ बात जान रहा था जो चेले नहीं पता थे And God the Father is the source of all blessings. कि पिता परमेश्वर सारे आशीर्वादों का उगम है And He, Jesus Christ, is the realization of all blessings. और यीशु मसीह सारे आशीर्वादों का अस्तित्व है On the cross, He's going to give Himself completely to the disciples. और क्रूस पर अपने आप को पूर्णता से अपने आप को चेलों को देने वाला है He's going to give Himself completely to you and me. वो अपने आप को पूर्णता से आपके लिए और मेरे लिए दे देने वाला है That means overnight we are going to be filled with all the riches of heaven. यानी रात भर ही में सारे स्वर्ग का धन संपत्ति हमारे पास होने वाली है Are you getting what I'm saying in church? मैं जो बता रहा हूँ गली से आपको समझ में आ रहा है In a moment, we are going to become the richest people. वो क्षण भर में ही हम बहुत ही धनवान व्यक्ति बनने वाले In a हैं moment, we are going to become the most prosperous वो generation. क्षण भर में बहुत ही उन्नति भरे वैसे वंशज बनने वाले In हैं a moment, we're going to become a blessed generation. और क्षण भर में बहुत ही आशीर्वादित ऐसी पीढ़ी हम बनने वाले हैं And now you're going to need a counselor. और अब आपको एक सलाहकार की जरूरत है Hallelujah. Hallelujah. That's why he says, I'll go and I'll ask the Father to send you a counselor. और इसलिए उसने कहा कि मैं जाकर पिता को मांगूंगा कि तुम्हें एक सलाहकार दे The counselor, सलाहकार the advisor. और सलाह देने वाला Hallelujah. Hallelujah. That is the role of the Holy Spirit in your life. और ये पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है उसका You कार्य know, we don't understand the role of the Holy Spirit. देखिए हम पवित्र आत्मा के कार्य को समझ नहीं पाते That हैं is why we don't enjoy His presence with us. और इसीलिए इस बात में यानी इस जीवन में उसकी उपस्थिति का लुत्फ भी हम नहीं A उठा lot रहे of people say, I want to get more close to the Holy Spirit. बहुत सारे लोग कहते हैं कि और भी मैं पवित्र आत्मा के निकट जाना I चाहता want हूँ to know the Holy Spirit more personally. मैं और भी पवित्र आत्मा को और भी व्यक्तिगत स्वरूप से जानना चाहता हूँ There is only one way to do it. केवल एक ही तरीका है ऐसा करने का You know, I'll come back to the worldly example. और सांसारिक उदाहरण के तौर पर मैं बाद में आऊंगा When you have a lot of money, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा that advisor from that bank, तो उस बैंक से वो जो सलाह देने वाला होगा he'll put a small tent right below your building and stay there. वो आपके बिल्डिंग के बगल में एक छोटा सा टेंट मारकर वहीं पे बैठ जाएगा Even at night 12 o'clock, if you call him and say, oh, I need a little urgent help, can you come? रात को 12 बजे भी अगर आप कॉल करके उसे कहोगे कि मुझे अर्जेंट जरा मदद चाहिए जरा आप आओगे क्या Yeah, I was just near your building only, I will right now come. और वो कहता है अरे मैं तो आपकी बिल्डिंग के निकट ही हूँ बस अभी आ जाता हूँ Hallelujah. हालेलुया He's not going to move from there और वहां से बिल्कुल हिलने नहीं वाला because he knows that you have a lot of wealth. क्योंकि वो जानता है कि आपके पास बहुत सारी धन If संपत्ति you है want to get more closer to the Holy Spirit, अगर और भी ज्यादा आप पवित्र आत्मा के निकट जाना चाहते हो spend more time with the Word of God, finding out your inheritance. और आपकी मिरास को जानने में और ले लेने में परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में ज्यादा समय बिताइए No? I thought you will say spend 40 days in fasting and prayer and the Holy Spirit will come upon you and you will clap your hands and jump around.
और मैंने सोचा आपको होगी कि यार 40 दिन उपवास करके प्रार्थना करके आप जो है पवित्र आत्मा की मांग करोगे, पवित्र आत्मा आएगा और ताली बजाकर आप प्रभु की महिमा That is करोगे। one way of doing it. ये तो एक तरीका है ऐसा करने But का, I'm talking about a daily way of doing it. लेकिन मैं जो है रोजमर्रा के जीवन में ऐसे करने की बात को बता रहा Every हूँ। time as you read the word of God, और हर बार जब कभी आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो finding out your inheritance. और अपनी मीरास को उसमें खोजो, पाओ। Wow, this is mine. अरे ये तो मेरा है, This is mine. ये तो मेरा है, This is mine. ये मेरा है, This is mine. ये मेरा है। I am through Christ Jesus. I'm a child of Abraham. मसीह यीशु के द्वारा मैं अब्राहम की संतान हूँ, This is mine. ये मेरा है। As you start increasing the knowledge of your inheritance, जैसे आपकी मीरास की समझ का ज्ञान आप बढ़ाते I'm जाते हो, telling you, the Holy Spirit is not going to leave you and go anywhere. मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. When it comes to wealth management, he's worse than all the banks right now we have in India. He's never going to leave you. He's just going to stick on to you to make sure that everything that you have. और जब अर्थव्यवस्था की बात होगी तो सारे वो संसार के सारे बैंक से सबसे वो उत्तम है, और वो जब तक ये धन संपत्ति आपके पास है तो वो आपके पास लगा रहेगा, सटा रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. He's just not going to leave you. और वो आपको छोड़ने नहीं वाला। Verse 26, John 14:26. यूहन्ना 14वां अध्याय का 26वां वचन, The portion that we just read. और अभी जो हमने भाग पढ़ा, I'm reading again from the Amplified Bible. एम्पलीफाइड बाइबल से दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। John 14:26 now. और यूहन्ना 14 का 26वां वचन है। But the Comforter, परंतु सहायक called the Counselor, और जो सलाहकार, Helper, जो मददगार, Intercessor, जो बिचवाई करने वाला Advocate, और जो वकालत करने वाला Strengthener, और बलवंत करने वाला Stand by, और निकट खड़ा रहने the वाला, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, whom the Father will send in my name, in my place, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे स्थान पर भेजेगा, to represent me and act on behalf of me, और मेरी ओर से और मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हें बताने के लिए, सिखाने के लिए आएगा। Now, I'm sure this is in reply to the mind of the disciples. और चेलों का जो मन था उसके प्रति ये जवाब था, मैं समझता Because हूँ। the disciples were thinking, why do I need an advisor? क्योंकि चेले समझ रहे थे, अरे मुझे सलाहकार की क्या Why do जरूरत I need a counselor? है, मुझे सलाह की क्या जरूरत Now है। Jesus says, अब यीशु कहता है, when he comes, जब वो आएगा, when the counselor comes, जब सलाहकार आएगा, when your advisor comes, जब तुम्हें सलाह देने वाला आएगा, first thing that he will do is this. पहली बात जो वो करेगा वो ये है, He will teach you all things. वो तुम्हें सारी बातें He सिखाएगा, will teach you about your inheritance. वो तुम्हें तुम्हारी मिरास के बारे में सिखाएगा। You know, when it comes to the will, जब जो है विल के बारे में बात होती when a है, very wealthy man dies, और जब बहुत ही धनवान व्यक्ति मरता है leaving all his property in the will, और सारी अपनी प्रॉपर्टी उस इच्छा पत्र में लिखता है, and after his children have buried him with all honor and respect, और सारा आदर और सारा जो है मान के साथ जब उसके बच्चे उसे गाड़ देते हैं, and then they go straight to the house to take hold of the will, और उसके बाद सीधा जाकर उस इच्छा पत्र को हासिल करने के लिए घर जाते हैं, before they reach home, और घर पहुंचने से भी they पहले have already called a lawyer there. You know और that? पहले ही वहां पर एक वकील को बुला ले आते हैं। आपको बताएं ये बात? Amen. Hallelujah. हालेलुया। When two brothers are reading a will, जब दो भाई इच्छा पत्र को पढ़ते हैं, and we two are brothers, हम दोनों भाई हैं, and we are reading the will, हम इच्छा पत्र को पढ़ रहे now हैं, we are not keeping a hand on each other and sipping a cup of tea and say, let's see, पापा ने आखिरी खत में क्या लिखा है? Now what was the last letter dad has left for us? और कंधे पर हाथ रखकर चाय पीकर ऐसा नहीं कहते कि अरे पिताजी ने अंतिम इच्छा में इच्छा पत्र में क्या लिखा, जरा देख लेते हैं। Let's just read the last letter. वो अंतिम खत जो पत्र हम जरा पढ़ लेते No, हैं। there's no casualness. बिल्कुल ऐसा हल्कापन नहीं होता। Before both of us reach our homes, वो हम दोनों जन घर पर पहुंचने से पहले I will call two lawyers. और मैं दो वकीलों को He बुलाऊंगा, will call two lawyers. और ये भी दो वकीलों को They बुलाना will है, be present in the house even before we reach. और हम पहुंचने से पहले वे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। And so he, my elder brother, says, okay, come on, let me open the letter and read it. और ये मेरा बड़ा भाई ये कहेगा कि आओ हम उस इच्छा पत्र को निकाल कर हम पढ़ें, I will say, no, no, you don't open. और मैं कहूंगा नहीं तू नहीं Let खोलना, the lawyer open. और उस वकील को खोलने दो। Why? What does the lawyer do? क्यों? वो वकील क्या करता He है? opens the will. वो उस इच्छा पत्र को He निकालता है reads it. और उसे पढ़ता है He interprets it. और उसका बखान करता He है, translates it. उसे वो अनुवाद करता है And he teaches us. और वो हमें सिखाता है, Explains to us. वो बखान करके बताता है। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Perfectly in the boundaries of the law. और उस सारे कानून और कायदे को सारे स्तर के मुताबिक He explains our inheritance to us. वो हमारी मिरास जो है हमें बताता है, समझाता है। Jesus says you need the Holy Spirit for this reason. यीशु ने कहा कि इस वजह के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा की A जरूरत lot है। of people carry the Bible in their hand proudly and they go. बहुत सारे लोग जो है गर्व पूर्वक
लेकर चलते हैं have no clue of what it says. और बाइबल में क्या लिखा बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता I think होगा। it is said like that अरे there. मुझे ऐसा लगता है कि उस स्थान पर ऐसा कहा I गया है। think it is said like that. मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थान पर ऐसा कहा गया I है। think it means like this. मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये है। No, no. To solve all this, I think you think doubt only. Jesus says, I will send you the advocate. नहीं यही बात मैं ऐसा सोचता हूँ तू ऐसा सोचता है सारा शक निकालने के लिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजता हूँ। Some people worse, they say my pastor thinks like this. कुछ लोग बहुत ही इतने होते को बोलते हैं अरे मेरा पासवान ऐसा सोचता है। Jesus said, put all that confusion to rest. यीशु ने कहा कि सारे जो है दुविधा को एक बगल में रख लो। You have an inheritance. तुम्हारे लिए एक मिरास है। Come on, everyone, lift up your hand and say, I have an inheritance. सब जन अपने हाथ उठाकर कहें मैं जो मुझे एक मिरास है। I have an inheritance. मेरे लिए एक मिरास है। Keep that hand up और वो हाथ ऊपर ही रखो। and say, I have a counselor. और कहें कि मुझे एक सलाहकार है। Do that once again. मेरे लिए एक सलाहकार है। To take care of my inheritance. मेरी मिरास को देखभाल करने के लिए। Praise God, put your hands down. अपने हाथ को नीचे रखें। That is why the Holy Spirit is here. और इसीलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Now when you read the Bible, अब जब आप बाइबल पढ़ते हो it is not in the original text. और ये मूल जो टेक्स्ट मूल जो भाषा में ऐसा नहीं है। Some people read the Bible in English, और कुछ लोग इंग्लिश में बाइबल पढ़ते हैं। but they're kind of reading it in the original text. लेकिन ओरिजिनल जो मूल जो भाषा है उसके आधारित तौर पर पढ़ते What's हैं। the original text? और आप जानते हो मूल भाषा में कैसे लिखा है? Hebrew and Greek. और इब्रानी और ग्रीक में। Getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ So रहा they're reading English, है? इंग्लिश तो पढ़ते but हैं it's all Hebrew and Greek. लेकिन सब इब्रानी और ग्रीक के जैसे हो I जाएगा। don't understand one word, Lord. अरे मुझे इसमें से एक भी शब्द पता नहीं चला समझ में नहीं Hallelujah. आया। All हालेलुया। wisdom belongs to God. और Only He knows. सारी बुद्धि परमेश्वर ही की तो केवल परमेश्वर ही जानता है। So God has sent us the counselor और इसलिए परमेश्वर ने सलाहकार हमारे लिए भेजा to है। translate the Hebrew and Greek into plain English and Hindi for you and me. और आपके लिए और मेरे लिए उस ग्रीक और इब्रानी जो मूल भाषा है उसको इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए मेरे लिए So समझने that को whenever you meditate on your inheritance, ताकि जब कभी आपकी मिरास की और अध्ययन और मनन आप करें hallelujah. Hallelujah. Every time you open the Bible to find your inheritance, हर बार जब कभी अपनी मिरास को प्राप्त कर समझने के लिए आप बाइबल खोलेंगे every time you open the Bible to find your healing, हर बार जब कभी अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए आप बाइबल खोलेंगे every time you open the Bible to find your breakthrough, और हर बार जब कभी अपनी बेदारी को प्राप्त करने के लिए आप बाइबल खोलेंगे the lawyer is going to be there. तो वहां पर वो वकील होगा The advocate is going to be there. वो वकील हमेशा वहां पर होगा The counselor is going to be there. तो सलाहकार हमेशा वहां पर होगा Because without him we cannot understand. क्योंकि बगैर उसके हम उस बात को समझ नहीं It सकते is only He who can translate it in a way we understand. क्योंकि वही है जो ऐसे प्रकार को अनुवाद करेगा जिस प्रकार से हम समझ सके It is only He who tells us what I have and what I don't have. और केवल वही वो बताएगा कि जो मेरे पास क्या मुझे मिलेगा और क्या नहीं मिलता First Jesus says like this. और पहले यीशु ने इस प्रकार से कहा Holy Spirit, He will teach you. पवित्र आत्मा वो तुम्हें सिखाएगा Hallelujah. हालेलुया Whenever you open the Bible, it's very important to welcome the Holy Spirit and ask Him to teach you. ओ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी आप बाइबल खोले तो पवित्र आत्मा का स्वागत करें कि वो आकर आपको सिखाए Even before you open your Bible, this should be a prayer. The Holy Spirit, I request that you come here and you teach me from your word. और आप बाइबल खोलने से भी पहले ये आपकी विनती होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ कि आप आइए और इस बात को ये बाइबल में की बातों को आप मुझे You सिखाइए know, when I read the Bible, I have two experiences. देखिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे दो अनुभव रहे You know, हैं I go to the Bible reading time with a fixed plan. You know, it's always good to have a plan. What are you going to do in that time? और जो बाइबल अध्ययन के तौर पर जो एक ठहराई गई योजना के साथ में जाता हूँ हमेशा ऐसे ठहराई गई योजना बहुत ही अच्छी होती है बाइबल Then I have पढ़ने to की finish these next 10 pages. कि अगले 10 पन्ने मुझे पूरे पढ़ने Some plan. I go with some plan. और कोई ऐसी किसी योजना के साथ में आगे I बढ़ता have हूँ two experiences. और दो अनुभव है One experience is like this. एक अनुभव इस प्रकार से है I pick up the Bible with a plan. और मैं एक योजना के साथ बाइबल उठाता I हूँ start reading it. और मैं पढ़ने लगता I हूँ stop at a verse. और मैं कुछ वचनों पर रुक I जाता start हूँ thinking about it. और उसके बारे में सोचने Then लगता I हूँ take my iPad. उसके बाद आईपैड I लेता start हूँ finding something in that. और उसमें से कुछ खोज I निकालता start हूँ making notes. और कुछ नोट्स में ले And लेता finally I हूँ see 45 minutes have gone और अब मैं देखता हूँ कि 45 मिनट पूरे हुए हैं and I have not moved over half a page. और आधा पन्ना भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ Okay? This is one experience. और ये एक अनुभव है The second experience, दूसरा अनुभव where I ask the Holy Spirit to come.
और जहां पर मैं पवित्र आत्मा से कहता हूं कि I say, आना, this is my plan. और मैं कहता हूं कि ये मेरी योजना है I just have this much time. और मेरे पास केवल इतना समय I है want this time to be useful. और मैं चाहता हूं कि ये सारा समय उपयोगी I हो want this time to influence my life. और मैं चाहता हूं कि ये समय जो है मेरे जीवन में बहुत ही प्रभाव डाले Then I start reading. और उसके बाद मैं पढ़ने लगता And हूं I'm telling this experience is very different. और मैं आपको बताऊं कि यह अनुभव बहुत ही अलग है I don't get stuck anywhere. और मैं कहीं पर अटक नहीं रुकता नहीं हूं As I keep reading, और जैसे मैं पढ़ता the रहता Holy हूं Spirit keeps speaking. पवित्र आत्मा बातें करता रहता I है learn only what I need to learn for that day. और उस दिन Use my wisdom. उस समय पर मेरी बुद्धि का जब मैं उपयोग करता हूं I almost end up with a 10-page, thesis of that verse. और जो है मैं 10 पन्नों को कंप्लीट पूरा करता हूं और कई बातें जो होती हैं Thesis हो जाता है. If I give that, maybe some institute might give me a doctorate. हो सकता है कि अगर मैं इंस्टीट्यूट को दूं तो मुझे डॉक्टरेट दे दे And half of that knowledge is not required for me for that day. और उसमें से आधा ज्ञान तो उस दिन के लिए मेरे लिए कोई जरूरत भी नहीं पड़ता You getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है Bible study is very important. बाइबल स्टडी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात What है is more important is Bible study useful for you. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बाइबल अध्ययन आपके लिए जो उपयोगी है वो बहुत ही जरूरी Are है you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है Hallelujah. हालेलुया So this is where the Holy Spirit comes in. क्यों ये वो यहाँ पर पवित्र आत्मा He आता है controls. और वो नियंत्रण लेता He है feeds you the food that you require for that day. वो उस दिन के लिए जो आपको भोजन चाहिए वो भोजन आपको खिलाता है He's not sending you with a full, a suitcase full of food. वो पूरा सूटकेस भर के भोजन आपके लिए नहीं He भेजता knows it's going to be wasted. और वो जानता है कि पूर्णता से व्यर्थ The होगा Holy Spirit teaches. पवित्र आत्मा हमें सिखाता It's है important to take the help of Holy Spirit in Bible study. और बाइबल स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पवित्र आत्मा की मदद हम मांगे He keeps your focus. वो आपका लक्ष्य लगाए रखता He है gives you exactly how much you need for that day. और उस दिन के लिए जितना चाहिए बराबर उतना वो आपको देता है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. What is the second thing he does? और दूसरी बात वो क्या करता है Reading that verse again. और उस वचन को हम दोबारा पढ़ें Just continuing. और लगातार आगे He will बढ़ें teach you all things. और वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा And he will cause you to recall, will remind you, bring to your remembrance everything I have told you. और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा First he teaches you, और सबसे पहले वो तुम्हें सिखाता है then second he increases your memory power. और दूसरी बात तुम्हारी यादगार स्मरण शक्ति को बढ़ाता है Believers nowadays need a lot of help in this area. और विश्वासी लोग इस क्षेत्र में आप तो बहुत ही मदद उनको सहायता की जरूरत है Hallelujah. हालेलुया Remembering what we've learned. और जो हमने सीखा उसे स्मरण करना Remembering the promises of God. परमेश्वर के वादों को याद रखना Remembering the faithfulness of God. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण रखना Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You can so easily remember when you were 8 years old who's that guy who really, pinched you or poked you when you were in school. देखिए ये बहुत ही आसान है आपको ये बात याद रखना कि जब आप 8 उम्र के थे तो स्कूल में किसने आपको चिमटी दी थी किसने आपको मारा But था I'm telling you, it's very difficult to remember what was the message 3 weeks ago. लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही कठिन हो जाता है कि 3 सप्ताह के पहले क्या संदेश था That is why we use the help of maybe a notebook. और इसलिए हम नोटबुक का उपयोग में लाते हैं And मदद God says when the notebook also doesn't help. और अगर जब ऐसा भी होता है जब नोटबुक भी किसी मदद नहीं कर Then पाता the Holy Spirit comes in. तब पवित्र आत्मा So all those who need the help of the Holy Spirit, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है all those who need the help of the Holy Spirit, और वे सारे लोग जिनको पवित्र आत्मा की जरूरत है मदद की you जरूरत है first need to start with the notebook. तो पहले आपको नोटबुक से शुरुआत करनी होगी Hallelujah. I was taught this in school. और मैंने ये बात मुझे स्कूल में सिखाई God helps those who help themselves. और परमेश्वर उनको मदद करता है जो अपने आप को मदद So करते first हैं let me start helping myself by having a notebook. तो सबसे पहले मैं अपने आप को मदद करूंगा नोटबुक लेने के द्वारा Hallelujah. हालेलुया And when that doesn't help, और जब वो काम नहीं कर पाएगा God will come to help. तो पवित्र परमेश्वर मदद करने के लिए So आएगा। next week when you come, you need to carry 2 things with you. इसलिए अगले सप्ताह जब आप आओगे तो 2 बातें आपको अपने साथ ले आनी होगी Sorry, 3 things. माफ कीजिएगा 3 बातें One is the Bible, एक तो बाइबल है then the notebook, और नोटबुक है then the most important. और सबसे महत्वपूर्ण बात What can it be? क्या हो सकता है Pen. Hallelujah. हालेलुया So next week, Bible, notebook, and pen. और इसलिए अगले सप्ताह बाइबल नोटबुक और पेन The Holy Spirit teaches, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है then He helps you to recall. और उसके बाद वो आपको स्मरण दिलाता है He याद helps you to remember. वो आपको मदद करता है याद रखने के लिए मदद He करता है helps you to recall. और दोबारा वो सारी बातों को स्मरण दिलाता है Helps you to bring back to your remembrance. और आपकी यादगार में वो सारी बातों को ले आता It है is very important to have this ability to bring back to remembrance. और ये काबिलियत होना बहुत ही जरूरी है कि
back to remembrance is called meditation. और ये जो यादगार को दोबारा लाने वाले इस क्रम को जो है मनन कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Everything that the Lord serves you the first time, हर एक बात जो परमेश्वर पहली बार आपको देता the है, ability to bring all of it back to remembrance. उन सारी बातों को स्मरण में लाने की जो काबिलियत है, Hallelujah. All of it. और वो सारी बातें, Not just the heading of the message. केवल उस संदेश का शीर्षक नहीं। You know, some people, if you ask, what is pastor speaking on? कुछ लोग पूछते हैं, पांच किस विषय में बात कर रहे हैं? Abraham's blessings. अब्राहम की आशीर्वाद। Okay, what in Abraham's blessings? ठीक है, अब्राहम की आशीर्वाद में कौन सी बात? Abraham's blessings. अरे अब्राहम के आशीर्वाद के बारे What in में। Abraham's blessings? अब्राहम के आशीर्वाद में क्या? Abraham's blessings. अरे अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बता Not रहे हैं। able to go any further. और बिल्कुल आगे नहीं जा पाते। Because they remember the heading, because I've been screaming it out for last 35 weeks. क्योंकि वो केवल उस शीर्षक को याद रखते हैं, क्योंकि 35 सप्ताह से मैं इसी बात को तो चिल्ला रहा हूँ। If you forget even that, then I'll start serving Bonvita in church. अगर इस बात को भी आप भूल जाते हो तो कलीसिया में बॉम्बिटा देना शुरू But कर that देंगे। remembrance is not enough. लेकिन ये केवल स्मरण रखना काफी नहीं है, That remembrance is not enough. और ये याद रखना काफी नहीं है। If that word that came from the Lord has to be a blessing, अगर वो वचन जो परमेश्वर की ओर से आया है अगर आशीर्वादित रहना I है, need to be able to bring it out of me. तो वो मुझसे उस सारी बातों को प्रकट कर लेना, मुझे ऐसा करना The चाहिए। Holy Spirit should be able to find that content in our remembrance. और पवित्र आत्मा वो जो है हमारे स्मरण में हमेशा बनी रहने वाली बात को पा लेना है। You know, I think I've been preaching for the last 6 or 7 years now. मैं समझता हूँ कि पिछले 6 या 7 सालों से मैं प्रचार कर रहा And हूँ, I've got about, I think, 8 or 10 diaries with my old messages all kept. और मेरे पास जो है 8 से 10 ऐसी डायरीज हैं जो मैं पिछले जो इतने सालों से मैंने प्रचार And करता I हूँ, still have them in my shelf down there. और अभी भी मेरे पास वो शेल्फ में सारी बातें I हैं, don't remember those messages at all. और बिल्कुल उन संदेशों को मुझे याद नहीं है Even स्मरण में। today when I meditate on certain things, लेकिन आज भी कुछ बातों को जब मैं अध्ययन करता the हूँ, Holy Spirit only takes my mind to that. और पवित्र आत्मा बस केवल उसी बात की ओर मेरा मन ले And जाता I है, say, okay, now, where will I go and search that message? Come on, forget it. Why don't you teach me again? और मैं कहता हूँ प्रभु कहाँ पर जाकर उस संदेशों को मैं खोजूं ढूंढूं, क्यों नहीं आप मुझे और वापस सिखाते। And I'm telling you, he just goes silent. और मैं आपको बताऊं कि वो चुप हो जाता है, Go and find it. और वो कहता है जाकर ढूंढो। See, I've got a nice iPad. I've got technology that is in a notebook. Please tell me, I'll write it down afresh. अरे मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है और जो आईपैड है और कई बातें हैं, आप मुझे बताइए प्रभु, मैं नई तौर से लिख लेता No, हूँ। he just reminds me. He says, you remember, that was a topic under which you also, thought about this. It's there. Go and find it. और वो कहता है कि नहीं, ये तुझे याद होगा, ऐसा शीर्षक था, ऐसे ऐसी बातें मैंने तुझे बताई थी, जा और वहां पर ढूंढ ले। From there, I've understood the importance of, being able to remember and recall what God has taught you in your life. और इस बात से मैंने इस बात को सीखा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो बातें बताए उन सारी बातों को स्मरण में ले आना, How सारी बातों को interesting याद it would be if you go to a doctor with severe stomach pain. और कितना दिलचस्पी वाली बात होगी, आप भयंकर पेट दर्द के साथ आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, You're in tears, you just can't bear that pain. आप आंसुओं के साथ हो और उस दर्द को आप सहन नहीं कर पा रहे हो और डॉक्टर के पास Or गए। imagine someone in your house has just had a heart attack. और या तो कल्पना कीजिए घर में किसी सदस्य को जो है दिल का दौरा पड़ा, You rush him in an ambulance to the doctor. और आप एम्बुलेंस में ले चलते हो, उस डॉक्टर के पास ले चलते And then you come on the stretcher in front of the doctor. हो, और डॉक्टर के सामने आप उस स्ट्रेचर पर आते हो, And the doctor says, please hold on a minute. और डॉक्टर कहता है रुको जरा एक मिनट, I've got about 5,000 books in my library. और मेरे लाइब्रेरी में 5000 किताबें हैं, I just need to go and refer a few of them. और मुझे जाकर उसमें से कुछ बातों को देख लेना It's होगा। quite a while since I did an open heart surgery, और वो सर्जरी के लिए बीच बीच में मैं ऐसा करता It's हूँ, quite a while since I've done. और मैंने ऐसा करके बहुत समय हुआ I है। need to go and practice on 2-3 other people and come. और मुझे जाकर 2-3 लोगों पर प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद In आना the होगा। time of our emergency, जब हमारे इमरजेंसी और जरूरत के समय we पर, need that recall. और वो स्मरण हमें रहना बहुत जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. In the time of our difficulty, और हमारी कठिनाइयों के समय में we need that absolute recall of what we've heard from the Lord. वो परमेश्वर से जो हमने सुना था उस बात का पूर्णता से स्मरण रखना बहुत जरूरी If होता है। not in our mind, अगर हमारे मन में वो बात नहीं है, at least written down in your journal. कम से कम आपकी वो लेख में आप लिख लेना है, Somewhere where you can just take the book and just flip to those pages and say, yes, this is what it is. Read through that word, draw strength from it. और कहीं पर तो जो आपने लिखा है उसको आप ले, उस पन्नों को पलटे और वहां पर आप देखकर आप उस बात को प्राप्त कर ले। The Holy Spirit helps you to recall. पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाने के लिए मदद करता But for है, that, it needs to be there somewhere. लेकिन उसके लिए तो कहीं पर तो आप लिखा हुआ या दर्ज किया He हुआ होना first चाहिए। teaches you पहली बात वो आपको सिखाता है, and he recalls what is taught. और जो बताया सिखाया गया उसको आपको स्मरण दिलाता
saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Records have to be there. और वहां पर लिखित दर्ज किया हुआ होना चाहिए। Praise God. Praise the Lord. There has to be records. और उसका दर्ज किया हुआ होना So चाहिए। this is something spiritual. और ये बहुत ही आत्मिक है। I'm not talking about a physical discipline. मैं भौतिक ढंग तौर तरीके के बारे में नहीं बोल रहा। I'm talking about a physical discipline that can really help you greatly spiritually. मैं ऐसे भौतिक ढंग और तौर तरीकों को बता रहा हूँ जो आत्मिक स्वरूप से बहुत ही आपके लिए लाभदायक So होगा। this remembrance is what the Holy Spirit helps और us. इसलिए ये स्मरण दिलाने वाली बात को जो पवित्र आत्मा ऐसा करके हमें मदद करता है। 1 year later, एक वर्ष के बाद, 2 years later, 2 साल के बाद, 10 years later, 10 वर्ष के बाद, 20 years later, 20 साल के बाद, when something happens in your life, जब आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता and है, you're feeling down and out, जब आप जो है पूरे जो है आप निराश से और ऐसा कम अपने आप को the जब Holy Spirit brings to remembrance what you've heard. पवित्र आत्मा आपको स्मरण में ले आता है आपकी जिस बात को आपने He सुना, will give you the outlines. और वो उसके जो है मुख्य शीर्षकों को दे He सकता could है, just give you the bigger picture. और वो एक बड़ा सा चित्र आपको दे सकता है। Then He will lead you to that journey. उसके बाद उस यात्रा उस सारी क्रम से आपको वो He चलाएगा, will lead you to that book. और उस किताब की ओर वो आपको He चलाएगा, will lead you to that CD. उस सीडी की ओर वो आपको He will चलाएगा, lead you to that DVD. और उस डीवीडी की ओर आपको He चलाएगा, will lead you to that piece of paper और उस पन्ने उस कागज का पन्ना था उसकी ओर वो ले which you चलेगा, have taken all the effort to keep safe. और आप सुरक्षित रखने के लिए सारी मेहनत आपने उसमें जो लगा दी है। Then when you read that again, और उसके बाद जब दोबारा उस बात को आप पढ़ोगे strength comes back to you. और बल दोबारा आपके अंदर आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Strength comes back to you. और दोबारा बल आपको प्राप्त होगा। What God taught you 20 years ago, 20 वर्ष के पहले जो परमेश्वर ने आपको सिखाया, with those same words, He is now able to strengthen you again. उसी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अभी भी वो आपको बल देगा। Why? क्यों? He was able to recall something. वो किसी बात का स्मरण आपको दिला पाया। How was He able to recall? कैसे वो आपको स्मरण दिला पाया? Because I had it recorded somewhere. क्योंकि कहीं पर तो मैंने इस बात को लिख रखा था, दर्ज किया हुआ था। Very important spiritual discipline. ये बहुत ही आत्मिक महत्वपूर्णता का ढंग और तौर I तरीका just है। want to stop with these 2 points today. और आज मैं इन 2 विषयों को बताकर समाप्त And करना I'm going to चाहता हूँ। continue on the role of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में और लगातार मैं आगे बढ़ूंगा। Is everyone learning something new? क्या सभी जन कुछ नई बात को आप सीख रहे हो? Hallelujah. Hallelujah. I try to teach it in such a way that does not just relate to your spirit, but it needs to relate to your physical, real, practical life as well. और मैं इस प्रकार से आपको सिखाता हूँ कि केवल आपको आत्मिक स्वरूप से आपको वो लागू ना हो, लेकिन भौतिक स्वरूप से और जो है रोजमर्रा के स्वरूप से वो आपके लिए बहुत ही So उपयोगी what है। should we do this week? और इसलिए इस सप्ताह हम क्या करना चाहिए? Find out from the Word of God your inheritance. परमेश्वर के वचनों से आपकी मीरास को खोज निकालें। Hallelujah. Hallelujah. Everything that the Bible speaks about you, हर एक बात जो बाइबल आपके बारे में बतलाती है, every verse that the Holy Spirit makes to pop out from the pages, हर एक बात जो पवित्र आत्मा उन पन्नों में से आपके लिए उभार लाता है, make a record of them. उन सारी बातों को लिख ले। Hallelujah. Hallelujah. Make a record of them. और उन सारी बातों को आप लिख ले, Spend time with the Spirit of God. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं। Every time you have time to read the Bible, हर बार जब कभी आपके पास समय मिलता है बाइबल पढ़ने का, before you open the Bible, welcome the Holy Spirit. और बाइबल को खोलने से भी पहले पवित्र आत्मा का स्वागत Say, Holy कीजिए। Spirit, I just have half an hour. आप कहें कि पवित्र आत्मा मेरे पास केवल आधा I घंटा need to do so much reading. और बहुत सारी बातें अब मुझे पढ़नी है, Let this time be useful. और ये समय बहुत ही उपयोगी हो Teach प्रभु। me something. मुझे कुछ सिखाइए And पवित्र I'm आत्मा। telling you, in that half an hour, He will feed you with exactly what you need for that day. और मैं आपको बताऊं कि उस आधे घंटे में बराबर उस दिन के लिए जो आपको चाहिए उसी बातों को परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको खिलाएगा। No extra ज्ञान. वो कोई ज्यादा बढ़ चढ़ कर ज्ञान नहीं देगा, Exactly what you need for that day. बराबर उस दिन के लिए जो आपको चाहिए बराबर उसे Step सिखाएगा। number 1. और पहला कदम, Step number 2. दूसरा कदम, Everything that the Holy Spirit teaches you that day. और हर एक बात जो पवित्र आत्मा उस दिन आपको सिखाता It's है, very good practice to immediately jot it down. ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है कि तुरंत उस सारी बातों को लिख ले, Not stories, और कहानी नहीं but लिखे, just those few points the Lord has spoken to you that day. और जो महत्वपूर्ण ऐसे कुछ बातें जो उस दिन पवित्र आत्मा ने आपसे बताया, Note it down in your diary. और आपकी डायरी में उसे लिख ले, Keep that safe. और बहुत ही सुरक्षित उस बात को रखें। And then you will see और उसके बाद आप देखेंगे how the Holy Spirit helps you to recall what He has spoken. किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने जो कहा है उस बात को दोबारा वो आपको स्मरण He दिलाएगा, helps you to recall. और दोबारा आपको